बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरे साथ मौजूद हैं दुनिया कॉमेडी का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, शजर अब्बास द ग्रेट, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल। नाज़रीन, जब बात आती है समंदर पार जाकर मुस्तकबिल संवारने या ख्वाबों को हकीकत का रूप देने की, तो वीज़ा के बग़ैर ये सब बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। दूसरा रास्ता है डंकी का है, जो मौत का रास्ता है। खुशकिस्मती से आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनके पास इन सारे मसाइल का हल मौजूद है। वीज़ा कंसल्टेंसी की दुनिया का ऐसा मोतबर नाम, जिनकी अपनी ज़िंदगी की कई दहाइयाँ इसी दश्त की सयाही में गुजरी, यानी वीज़ा कंसल्टेंसी से वो मुंसलिक रहे, जनाब असदुल्लाह खान साहब। नाज़रीन, असद साहब की बातों की तरफ, मालूमात अफजा बातों की तरफ हम बाद में आते हैं। पहले आपको लिए चलते हैं अपने स्केट बोर्ड की जानिब और दिखाते हैं कि दौरे हाज़िर में मोहब्बत को ख्वाबों की ताबीर समझा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ लव मैरिज को कई मसाइल की जड़ भी करार दिया जाता है। आइए मामला समझने की कोशिश करते हैं। चौधरी साहब खैर है, आज सुबह सुबह सारे मुंह धोते बगैर इत्थे डेरे ते जुड़े बैठन। तू अपने काम ना काम रख, तू उन्हां दे मूंह वाल वेखण डई। जो साडे नाल होया असी ना धो के आवीए इथे। की होया तुहाडे नाल? साहू जी ने कीता कुछ? चल सब फिटे मुंह साडे के असी इस पिंड दे विच जम एक पाए। गल तू अपने घर 'च बैठ के भी कह सकदा सी, डेरे ते आके कहना जरूरी कोई सी। मर गया है। ओए मारी ना अगे तू मेनू बड़ा इत्थे लैण की आया? मेरी गल इत्थे लैण की आया? एक मिनट, फैसला कराना है ना? गल फैसला कराना है। एक मिनट, ते आपको मारन दिया हूं। मेरी गल आपको मार रहे हूं। सुन तो लो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੁਸਾ ਫੜ ਲੈਣਾ। गल सुन तो लो चल साहब। जो सब तुसी हट के आ भी साडी धी बहन कोई काट के ला जावे, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲਾਈ। ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਧੀ ਭੈਣ, ਜਾਂ ਪਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਵਰਗਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਕਿ ਚਪੇੜਾ ਮੈਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁੱਟਾਂਗਾ। ਓਏ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਵੀਤ ਪਾਏ ਨੇ। ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਓਏ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਓਏ। ਰਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਆ। ਓਏ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੇ, ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਖ ਮਟੱਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਚੁਦਰਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਰਨੈਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਖਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤਬਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਖਾਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾ ਗਈ। ਚੂਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਖਾਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ। ਵੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਚੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਚੋ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਓਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੁੜ ਕੇ ਕਢਵਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਤਾਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾ। ਬਸ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂ? ਲੜਾਈ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਜੇ, ਚੌਧਰੀ ਜੇ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇ ਤੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ। ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਓਏ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਂਗਲੇ ਲੁਕੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ। ਵਾਹ ਬੰਦ ਅੱਛਾ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਠੀਕ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਗੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰੇ ਸਾਡੀ ਤਲਾਕ ਕਰਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਤੇ ਕਾਮੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ? ਜਾਹਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ। ਅਸੀਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਂ ਵੀ ਬੁਰਖੀ ਚੁੱਕਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੁਕਾ ਭੇਜਣਾ, ਓਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੁਕਾ ਭੇਜਣਾ? ਚੁਦਰਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਧੀ ਭੈਣ ਸਮਝਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੇ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਸ਼ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬੀਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਿੱਲੀ ਛੱਡਣ ਚੱਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੜੀਏ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਿਸਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁਣ ਹੈਂ? ਉਦੋਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਕੋ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਬੇਵਕੂਫ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਸੀ ਵੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨਾ, ਚੁਦਰਾਣੀ ਨੇ ਉਧਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਖਲੋ ਜਾਣਾ।
ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਹਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖਣੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਚੁਦਰਾਣੀ ਨੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਅਕਸ ਰੁੜਦਾ 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 ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੁਮਰਾਤ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅਕਸ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅਕਸ ਰੁੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੱਝ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ, ਚੁਦਰਾਣੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲ focus ਸਾਡਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਲੀ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਦਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ, ਘੋੜੀ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ। ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੁਲਫੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ 1150 ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਰਾਣੋ ਆਪ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਾਣਾ ਸਾਨਾ ਦੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਣ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਪਾਪੜ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ। ਚੁਦਰਾਣੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਦਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਗੜੀ ਸੱਜੇਗੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਨਾਲ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਰਖਵਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ ਮੁੱਛਾ ਵੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਣਾ? ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਵਸਣ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਲੀਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰੇ 'ਚ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੈਲੋ ਵੇ ਕੁਛ ਅਕਲ ਤੂੰ ਕੰਮ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਜ਼ਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਚ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਵਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸ ਹੈ। ਓਏ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋੜਾ ਮਾਰਿਆ, 3 ਦਿਨ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਫਿਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਯਾਦ ਆ ਘਾਟਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਬਣਨ ਡਈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਵਾਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਥੱਲੇ ਬਹਿ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਾ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਬਦਲ ਕਰਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ 7-8 ਜਣੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਗ ਕਰਨਾ। ਉਹ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੱਝ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੱਖੀ ਵੜ ਜੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਬੋਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ, ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਵੱਜਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, वालेकुम की हाल है? दुर्दाना, दुर्दाना 2 महीने तो तू गायब से, किथों आई है तू? भाईजान मैं अपने क्लास फेल ना ब्याह कर लिया है। नहीं 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 क्यों तेरे मुंह ते कह रही? एक की कीता ही दुर्दाना, तू बरादरी च मेरा नक वडवाता है। हैं? झूठ बोल रहे नाल ਤੇਰਾ लगा ਕਲਾਸ ਫੈਲ ਹੋਏ? जी ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਹਤ ਫੈਲ ਹੋਏ? जज साहब ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਵਾੜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਟੋਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਓਏ। ਹੈਂ? ਉਹਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੈਣ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਟੋਟੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੋ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਇਸੇ ਜਾਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਬਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਚੋ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੇ ਨਸ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। चौधरी साहब ਅਸੀਂ ਨੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਠੀਕ, ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਲਓ। जी ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ? ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਲੀਮੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁਦਰਾਣੀ को जमा करा दो। यार असल बात ये है कि हम अपनी ज़रूरत और सहूलत के पेश नज़र इज़्ज़त और गैरत के स्टैंडर्ड्स ही बदल लेते हैं और यहीं से सारे मसाइल जन्म लेते हैं। ठीक है चिट्टे बाबू, चो साहब ये कौन है? ये भी उकाड़े दा चौधरी है। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे।
असद भाई, एक हवाले से देखा जाए तो ये जो वीज़ा फैसिलिटेशन है या वीज़ा कंसल्टेंसी है, इसमें कोई डिग्री तो चाहिए नहीं, कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन अगर तजर्बे को बुनियाद बनाया जाए तो मेरा ख्याल है कि आप सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड बंदे हैं जिनका इतना तवील तजर्बा है, मेरा ख्याल 2 दहाइयों पर मुश्तमिल वीज़ा कंसल्टेंसी, और ख़ास तौर पे यूरोपियन मुल्कों का और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब एटलस ख़त्म हो जाती है, आपका तजर्बा ख़त्म नहीं होता। तो आप नहीं समझते कि इसमें कुछ लोग जो हैं वो कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि क्रेडिबिलिटी का जो क्राइसिस है इसको ख़त्म किया जा सके? जी जुनैद भाई, यही चीज़ पाकिस्तान में लैग कर रही है। हम जिस तरह से इस फील्ड में है, 99 से यूएस वीज़ा से जो है ना, मैंने लीड किया था प्रोजेक्ट को, फिर कनाडा भी आ गया उसके अंदर, फिर यूके के लिए बहुत थी, बिकॉज उस वक्त सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा थे। तो हम लोगों को एक, आप जेरीज और फेडेक्स जैसे इदारों के साथ मेरा ख्याल 2 दहाइयों तक वाबस्ता थे, और जो आला तरीन पोजीशन है जनरल मैनेजर के ओहदे पर आप फायज थे शायद। जी जुनैद भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम रखा है हमेशा से, और मैंने ये प्रोजेक्ट्स को सबको लीड किया है। और पाकिस्तान में उस वक्त एम्बेसीज ये सोच रही थी कि हम पाकिस्तान से कहीं मूव हो जाते हैं बाहर। अच्छा। तो उस वक्त हमने उनको एक सेफ एंड साउंड प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया। अच्छा। जिसके बाद वो एम्बेसीज पाकिस्तान में ही रहीं, और लोगों को बहुत सी सहूलत अभी भी हासिल है। आउटसोर्सिंग पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुई थी, और जिस कंपनी से मैं जेरी से वाबस्ता था, उन्होंने माशाल्लाह ये सारे सेटअप्स और सब इनको प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें कर दी थी। अच्छा असद भाई, इतने तवील तजर्बे के बाद फिर आपने इस शोबे में कदम रखा, एक्सप्रेस वीज़ा फैसिलिटेशन के नाम से, यानी वीज़ा कंसल्टेंसी के शोबे में आप आए। आप उस वक्त इस शोबे में आए हैं जब पूरा मुल्क बैरून मुल्क जाना चाहता है, सिर्फ कब्रिस्तान में मदफून लोग हैं चंद, या ऐवानों में बैठे हुए हैं जो पहले से ही जिनके पास नेशनैलिटीज मौजूद है, सिर्फ वो चंद लोग हैं जो नहीं जाना चाहते। नहीं, तुसी कब्रिस्तान जाके देखो ना, कब्रां जो आवाज़ आंदियां, सानू इथों बाहर कड्डो, बाहर असीं आपे चले जाएंगे। तो ऐसे आप इज़्दिहाम के आलम में, इतने रश के आलम में आपने ये काम शुरू किया, जब हर बंदा बाहर जाने के लिए तुला हुआ नहीं बल्कि नको नक हुआ बैठा है कि मैंने बाहर जाना है। 2 पार्टनर्स हैं, आप जानते हैं, हाशिम जो है मेरे साथ, मोहम्मद हाशिम, वो भी मेरे साथ कोई लास्ट को 30 ईयर्स से हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो हम दोनों बैठे थे, काम तो हम प्लानिंग तो लॉजिस्टिक की कर रहे थे, लेकिन फिर हम वीज़ा के लिए हुए, क्योंकि इस फील्ड के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, लोग एथिकली काम नहीं करते। हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जो काम हम कर सकते हैं ना, वो तो ज़रूर बताते हैं, और जो लीगल वेज होते हैं उसके, हम कभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, या उनको कभी हम गलत राह पे आस नहीं दिलाते, कुछ आस नहीं दिलाते हम, क्योंकि होता भी यही है कि एंड ऑफ द डे डिसीजन एम्बेसी ने करना है। 2 वाकया सुनाऊं पाकिस्तान से रिलेटेड। मैं पाकिस्तान के एक बहुत अमीर आदमी है, उनकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट $11 मिलियन की थी। अच्छा। और 70 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस उनके पर्सनल अकाउंट में था। उनका वीजा रिफ्यूज हुआ। क्यों? कहाँ का? यूएसए का। ओए होए, अच्छा। ये वे बैक में काफी पुरानी बात अच्छा। करता हूं। और उसी तरह से आप दिलचस्प देखिए, एक रिक्शा चलाने वाले का वीजा लगा यूएसए का ही 5 साल का, और एक पान की दुकान पे एक साहब काम करते थे, पान की दुकान थी, अच्छा। उनका भी वीजा लगा। उसको तो अमेरिका वैसे ही ले गया होगा यहाँ से कि यार हमने पूरी दुनिया को चूना लगाना है तो तुम आ जाओ हमारे पास। चूना बहुत अच्छा होगा ना। इस लिहाज से ये जो है ना बिल्कुल सही है। लेकिन बेसिस के डिसीजन जो होते हैं ना, वो बहुत सी चीज़ें क्राइटेरियाज देख रहे होते हैं। अभी बहुत सी हमें ऑफिशियल चेकलिस्ट वगैरह अवेलेबल होती हैं बहुत सी जगह पे, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे डिसीजन एम्बेसी का ही होता है लास्ट। लेकिन फिर भी हजूर, मतलब ज़हन में सवाल तो पैदा होता है ना कि हम सुनते आए हैं कि यूनान, पुर्तगाल, बरतानिया और फ्रांस, इन सब ने बारी बारी हमारी सरजमीन पे कब्जा करने की कोशिशें की थी। जी जी। तो आप ये बताइए कि आदादो शुमार की रोशनी में क्या हमारे नौजवानों ने हिसाब बराबर कर दिया वहाँ जाके? गुड क्वेश्चन।
अभी जो है ना उसमें थोड़ा सा टाइम बाकी है। बाकी है, अभी थोड़ा सा अच्छा। टाइम बाकी है। फिर हो रहा वीजे बाकी है। हाँ, लेकिन आप देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी माशाल्लाह हाँ। इस वक्त जो है ना रिमिटेंस हर साल ही बढ़ रही होती है। आप ये देखिए हम 25 करोड़ लोग 30 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वो शायद 80 लाख लोग हैं जिन्होंने हमें तकरीबन 38.5 बिलियन डॉलर उन्होंने हमें गोद लिया हुआ है, उन्होंने ओवरसीज लिया हुआ है। पाकिस्तानियों ने हमें गोद लिया हुआ है। एक्चुअली तो अब मेरे हिसाब से हमारे नेशनल असेंबली और जो भी सेनेट है उसके अंदर कम से कम वहां से नुमाइंदगी होनी चाहिए। वोट उनके बन नहीं रहे असद भाई, आप कह रहे हैं नुमाइंदगी होनी चाहिए। अगर उनके बने हुए वोट हम कैंसिल कर रहे हैं। सर अगर हमने आगे बढ़ना है ना तो हमें एक्सपर्ट्स लोगों की जरूरत है। सर आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन से मुल्क हैं जहां पर पहुंचना भी आसान है, स्कोप भी है, लेकिन अभी हमारे पाकिस्तानियों को पता नहीं है इस बात का? ज्यादा नहीं पता। पता तो वैसे पाकिस्तानी आजकल इतने बेचारे क्रेविंग है उनको कि उनको उन मुल्कों का भी पता है जो अभी बने नहीं है। जी देखें आसान तो हाँ। हमारे लिए मिडल ईस्ट ही है जहां पर देखा जाए तो। सही, अभी तो वो भी हमारे मुश्किल है। लोग जो है ना डिप्लोमा या डिग्री के ऊपर बिलीव नहीं करते। हमारे बहुत से एक्सपर्ट, इलेक्ट्रिशियन की मिसाल ले लीजिए, जी। वो बहुत एक्सपर्ट होंगे अपने काम में, बट उनके पास एक पेपर नहीं होगा, 6 मंथ का डिप्लोमा नहीं होगा। अगर वो हो जाए तो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है बाहर। लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल फोन रिपेयरिंग, ये अभी गवर्नमेंट भी काफी अरसे से, काफी सालों से डिफरेंट कोर्सेज फ्री में करवा रही है। हाँ जी। लेकिन नौजवान वो काम जानते हैं लेकिन वो क्लासेस नहीं अटेंड करते। 2-2 घंटे की क्लास होती है हाँ। और बाहर उनकी डिमांड बहुत है। सर मिडिल ईस्ट की लिस्ट में मेरा नाम कैसे लिखा जा सकता है? एटलीस्ट ये तो नहीं हो सकता। आप किसी दिन खाने का कोई कंपटीशन हो उसमें हिस्सा लीजिए। अच्छा असल में ये बताएं, सुनते हम ये हैं कि जो डंकी लगा के जाते हैं बाहर, वो भी कोई बेचारे 30-40 लाख रुपया, 50 लाख रुपया जाया करके जाते हैं। आप ये फरमाइए कि क्या 40-50 लाख में बाइज्जत तरीके से कानूनी अंदाज में बाहर जाया जा सकता है किसी मुल्क में? सर बेसिकली मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर किसी के पास 50 लाख रुपया है, वो इस मुल्क के अंदर बड़ी अच्छी जो है ना चीजें कर सकता है, अर्निंग कर सकता है। वो सिर्फ कपड़े की दुकान ही खोल लेना कहीं पर, तो भी उसकी अर्निंग बाहर के मुल्कों के अगर बराबर नहीं तो करीब करीब जरूर पहुंच सकती है। वाह, इतना रिस्क लेना, अपनी जान का रिस्क लेना, पैसे लोगों से उधार लेना, ये देखें, ये इनकी ईमानदारी की पर दलालत करता है असद साहब की। पहले वीजा कंसल्टेंट हैं जो कह रहे हैं कि पहली तरजीह नौजवानों की इस मुल्क में रहना ही होनी चाहिए। वरना तो जिस वीजा कंसल्टेंट से पूछो कहते कि कितने पैसे नो, कहते 3-4 लाख रुपए, कहते पढ़ाना हो तो जल्दी न देना। ऐसा ही है। हाँ। हमारी हमेशा से सोच रही है और हम अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की तरबियत भी रही है, और जो इदारे मुझे बड़े बड़े मिलते रहे हैं उसके अंदर एथिक्स के ऊपर चीजें करवाई जाती थी। अच्छा असद भाई ये बताइए कि पाकिस्तान में आप अपने तजर्बे की रोशनी में फरमाइएगा कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे हम ये समझ रहे होते हैं कि नहीं जी हमारा वीज़ा तो किसी तौर भी रिजेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन रिजेक्शन की वो कौन सी वजह है जो आम आदमी को समझ नहीं आती कि यार इस बुनियाद पे भी रिजेक्ट हो जाता है? फैमिली टाइज नंबर 1 होता है। फैमिली टाइज अगर स्ट्रांग हो तो लगा देते हैं, तो लगा देते हैं। अच्छा। नंबर 2, आप कोई बिजनेस इसका मतलब आइंदा के बाद जब वीजा लगवाने के लिए जाएं तो बहन भाई माँ बाप सारे गले मिलके हाथ पकड़ के इस तरह जाए वहां पे, जंजालपुर वाली फोटो बना के। देखें एम्बेसीज मतलब जिनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो, हाँ वो ये देखते हैं कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं, आपका बिजनेस या जॉब कितनी सिक्योर है, अच्छी जॉब कर रहे हैं, ये चीज वो ऑब्जर्व करते हैं, और आपके वापस आने के कितने चांसेस हैं या क्या वजूहात हैं कि आप जरूर वापस आएंगे। अच्छा ये फरमाइएगा कि पुर्तगाली वीजे के लिए ब्यूरोक्रेट होने के अलावा और क्या चीज जरूरी है? पैसा, अमीर होना। सिर्फ पुर्तगाली के लिए नहीं, आप ये देखिए ऑलमोस्ट ग्रीस ने भी ये काम शुरू किया हुआ है, और कंट्रीज भी शुरू कर रही हैं। इसके अलावा टर्की ने बहुत अरसे से किया हुआ है, और बहुत से पाकिस्तानियों ने ये किया हुआ है। मेरे ख्याल से शायद एक आध ब्यूरोक्रेट ख्वाजा साहब ने जरा नरम हाथ रखा है, वरना सब ने अपना ऑल आर सेटल्ड किया हुआ है। गुड।
19 ग्रेड ऑनवर्ड कोई आदमी पाकिस्तान में जो है ना हाँ वो कुछ कर चुका होता है बाहर अपना, अच्छा, काम दिखा चुका होता है। दिखा चुका होता है जी। उसकी प्लानिंग में होती है। सर हमें भी एक यूके में ना फिल्म मिली थी, मुझे अहमद रंगीला साहब को, तारक टैडी साहब ये को। जा रहे थे तो इनको रास्ते में पड़ी हुई मिली थी, झाड़ के देखा तो कहते फिल्म ही हो। आप ही कम करके नीचे आ गए। अच्छा सर, फिर बात पूरी सुना कर हाँ हाँ पूछो पूछो। फिर सर हम जेरिस गए इन वीजे लगवाने, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਲੱਗਾ है नहीं। एक दफा जेरिस से फोन आ गया कि आप अपने आके पासपोर्ट्स ले जाइए। खुशी नाल छापर पाड़े सर, अंदरों पासपोर्ट कढ़े है। पहले सफा सफा सी फोड़ते रहे कि शायद लगा होवे, फिर ताज दी गड्डी तरह फुर्रच फुर्रच किते नहीं। मैं फिर सोचन लग पे शायद किते खुफिया स्याही ना किते वीजा लिखे होवे कि जाओ जी आ जाओ, लेकिन नहीं उस्ताद जी वीजा लगा ही नहीं साडा। वीजा नहीं लगा? नहीं। तो फिल्म कड़ा लग गई फिर? अच्छा जब अब सुहाना के सवाल की बारी है, 4 ऑप्शंस हैं, एक चुननी है आपने। सवाल ये है कि अगर कोई क्लाइंट फरमाइश करे कि मुझे चांद पर जाना है, वीजा लगवा दें, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगे अपने चांद का नाम बताओ। अपने चांद का नाम बताओ। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगे चांद वाली माई ने चांद के वीजे बंद किए हैं। ऑप्शन नंबर 3, ये कहेंगे चांद तक मेट्रो चल लेने दो, भिजवा दूंगा। ऑप्शन नंबर 4, या फिर ये कहेंगे कि चांद का वीजा तो नहीं मिल सकता, मरीख के रास्ते डंकी लगवा देना। अमरीक दे रस्ते या मुश्तरी दे कहोगे उन्होंने कहा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਫਤਰੀ ਦਾ ਲਵਾ ਦਿਓ। मेरे ख्याल से अपने चांद से पहले मुझे अलग मिलवा दें, फिर उनका वीजे के ताल्लुक से बात करते हैं। चांद का नाम जानने की इजाजत है, मुलाकात की बिल्कुल नहीं है। हो सकता है इनका दिल बड़ा हो। फिर वो गाना सही है ना, चांद सिफारिश करता हमारा वो वीजा लगवा। जब वीजा ऑफिसर बंदे से सवालात कर रहा होता है ना, उस वक्त जो कंडीशन होती है ना वीजा लेने वाले की, वो बड़ी अजीब सी होती है। इतनी बुरी कंडीशन बंदे की बीवी के सामने नहीं होती जितनी वीजा ऑफिसर के सामने होती है। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਖਰਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 2000 ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ 99 ਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਨਾ ਸਹੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਫੜੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੀ वजह तो मेरा अभी तक वीजा रुक गया आज। यानी वीजा ऑफिसर के सवालात के जवाब देते हुए इंसान खुद को कैसे कंपोज रख सकता है? हाँ, वीजा ऑफिसर जो है ना वो आपको जज कर रहा होता है आपके कॉन्फिडेंस से। आप उसको जितना वो क्वेश्चन करे ना सिर्फ उतना जवाब दें, एक्सप्लेनेशन ना करें बहुत सी चीजों की। ये मतलब आपको वो कुछ कह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तो आप कहें मैं सैर व तफरी करने जा रहा हूँ बस। और अगर आप अपने किसी रिलेटिव या दोस्त को मिलने जा रहे हैं तो आप सिर्फ इतना जवाब दें कि मैं अपने भाई को मिलने जा रहा हूँ। मुख्तसर रखें जवाब को, जो जितना सवाल उसका जवाब। वाह वाह। ये बड़ी क्योंकि आपको जबरदस्त बात है। 1-1.5 मिनट से ज्यादा वो नहीं करेगा। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। किसी के आने से खुशबू बढ़ा करे जैसे, वाह वाह। किसी के आने से खुशबू बढ़ा करे जैसे, तुम आ गए तो ये मौसम निखर गया जैसे। निखरे हुए मौसम में निखरी हुई सूरतों की जानिब चलते हैं जी। निखरा हुआ मौसम कौन सा? बाहर है ना पानी खलोता, निखरा हुआ मौसम। आज बारिश हुई है। मैं ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸ਼ਜਰ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੱਡਾ ਟੋਇਆ ਪਾਤਾ ਇਹਨੇ। जी जुनेद साहब, आपके लिए शेर है कि मेरा नाम मोहम्मद नासिर है, हम हैं खालिस प्यार के बंदे, हमने ठेठ मोहब्बत की है, वाह वाह। पत्थर बांध के तुझको चाहा, आहा। खाली पेट मोहब्बत की है। बड़ी बात है। और कुछ पंजाबी के जुल्म समझो दूजियां दा सह गया, अच्छा। मार के चुप दी जो बुक्कल बह गया, हौसला कर हौसला कर हौसला, आहा। हौसला ही सानू लेके बह गया। यार क्या बात है, यार बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात। हौसला कर हौसला कर हौसला,
ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾਹ ਜੀ ਔਰ ਚੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲੈ ਆਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬਹਿ ਗਿਆ क्या कहने यार क्या बात है भाई नासिर भाई। दो तीन शेर और के अगर वो रह में सुस्ताया बहुत है थकन फिर क्यों उठा लाया बहुत है मेरे और मुल्क में ये मुश्तरक है कि लोगों ने हमें खाया बहुत है क्या कहने हमें समझाना दुनिया से ताल्लुक उसे ये हमने समझाया बहुत है बहुत अच्छे यार जी। तो अब बारी है गिफ्ट हैम्पर की। झलक ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट हैम्पर मिलेगा उसको जो देगा दुरुस्त जवाब। तो सुहाना का आज का सवाल है अपने मेहमानों से, जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको अगर उल्टा लिखे तो जिस्म का एक दूसरा हिस्सा बन जाता है। वाह 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 ओह जी उन्होंने बताया उन्होंने पहले हाथ बुलंद किया नाक और कान। नाक और कान हाँ, करेक्ट आंसर। क्या नाम है आपका? मुना। हमारी झलक ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर की आज की विनर है मोना। इनके लिए बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोमिन है। मेरा सवाल सर जुनैद के साथ है कि एक शो में आपने कहा था कि मियाँ बीवी को एक दूसरे से तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए, तो अगर देखा जाए तो ये रिश्ता है ही तवक्कुआत वाला, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं मैंने ये नहीं कहा था कि तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए, मैंने कहा था कि रियलिस्टिकली तवक्कुआत रखनी चाहिए, हकीकत पसंद होना चाहिए एक दूसरे से तवक्कुआत कायम करते हुए और फिर उनको कंटिन्यू करते हुए। वरना ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है, आई एग्री कि ये तो रिश्ता ही तवक्कुआत का है, अगर तवक्को टूट गई तो रिश्ता टूट गया। तो असल में देखें बुनियादी तौर पे औरत जो होती है ना वो रोमांस की दुनिया में रहना, रोमांस का एक बैलून होता है, गुब्बारा होता है जिसमें वो सारी ज़िंदगी गुजारती है, वो रोमांस को पसंद करती है, जबकि मर्द जो है वो हकीकत पसंद होता है ज़रा थोड़ा सा। वैसे औरत भी बड़ी हकीकत पसंद होती है आजकल की, लेकिन औरत जो है वो अप्रिशिएट होना चाहती है, अप्रिसिएशन चाहती है। मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने खाना कैसा बनाया है, मैंने सजावट कैसी की है। जबकि मर्द सड़ा भुसा आता है, रात को थका वो देखता भी नहीं है, औरत बेचारी सारा दिन का वो तो देखे तो सही, वो देखे तो सही, वो दिल ही दिल में कह रही होती है कि मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी, लेकिन मर्द जो है वो नहीं करता, अप्रिशिएट ही नहीं करता। लग कैसी रही हो, मैंने लिपस्टिक लगाई तू वेखी ही नहीं, अन्ना हुए हैं तो कहता मैं बाहर सारियां इन्नियां वेख हैं। थोड़ा सा दोनों को जो तवक्कुआत है ना, थोड़ा सा मर्द को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, थोड़ा औरत को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कि मर्द को ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि औरत ये चाहती है और मुझे अप्रिशिएट करना है, वो जितना कर सकता है उसको ज़रूर करना चाहिए। और औरत को ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि हर वक्त की तारीफ़ बंदा नहीं कर सकता, वो अपने मसाइल में उलझा हुआ है। तो थोड़ा सा, और सच्ची बात बताऊँ कि जब ये औरत की तरफ से ये तवक्को 2 साल बाद 4 साल बाद ये तवक्को लगाना छोड़ देती है ना औरत एप्रिसिएशन की, तो वो रिश्ता कमज़ोर होते होते टूट जाता है खुदा न खास्ता आखिर में, जब ये तवक्को टूट जाती है। तो तवक्को लगाए रखना चाहिए, तवक्को की मैं नेगेशन नहीं की थी मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम मोहम्मद वकास है और मेरा ताल्लुक़ शोबा तदरीस से है, और मैं अपनी आज कुछ लिखे हुए अशार नसीम विक्की साहब के लिए, क्योंकि मेरा पूरा घराना इनका फ़ैन है और बशमूल में इनका अपना घराना नहीं है। इरशाद जी इरशाद जी। तेरी बातें मुझे सोने नहीं देती अक्सर, सोने लगता हूँ तो आकर ये जगा देती हैं, ज़रूरी तो नहीं तुझको मुखातिब करना, तेरी आंखें तेरे अहवाल बता देती हैं। बहुत शुक्रिया। पहला मिसरा जरा दोबारा पढ़े। ना 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 रहने दे। प्लीज प्लीज अगो बेइज्जती होनी है अपनी। तेरी बातें मुझे सोने नहीं देती अक्सर, सोने लगता हूँ तो आकर ये जगा देती हैं। कुंडी ला के सोया करो। मना कीता सी ना तानू, ये शेर भी बदल जाना सी, कुंडी ना खड़का सुन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मौज़ है। मेरा सवाल असदुल्ला साहब से है कि जिस तरह आजकल लोग दर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, आप लोगों का तो कारोबार बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप लोगों की ख्वाहिश होगी सारे लोग ही बाहर चले जाएं। 1.5 महीने बाद कारोबार बंद। इस तरह में कई बंदे के पैसे मर जाते हैं। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ। जी अल्हम्दुलिल्लाह
हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ये एक चीज़ जो है ना लॉन्ग टर्म में मुल्क के लिए जो है ना इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंट जब चला जाए ना एक प्रोपोर्शनेट तरीके से जो है ना, ठीक है एक हो रहा होता है। अब हमारे हमसाया मुल्क के अंदर अगर 10 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर या IT स्पेशलिस्ट होते हैं तो 10% उसका बाहर जाता है। हमारे मुल्क के अंदर ये रेशो जो है ना 50% के करीब है, जो कि बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत ही अच्छा सॉन्ग जनाब दी खिदमत च लाले आरिफ साहब दा। जामा सदके गले दिए हंसिए, जामा सदके गले दिए हंसिए, ओ जुगी पारल कठिया बसिए, ओ एक फुल मोतिए दा मार के जगा सोनिए, ओ एक फुल मोतिए दा मार के जगा सोनिए। जामा सदके गले दिए हंसिए, जामा सदके गले दिए हंसिए, जुगी पारल कठिया बसिए, ओ एक फुल मोतिए दा मार के जगा सोनिए, ओ एक फुल मोतिए दा मार के जगा सोनिए, नीक फुल मोतिए दा मार के जगा सोनिए, नीक फुल मोतिए। अब ये वो तवक्कुआत जिनकी आप बात कर रही थी ना, कि अब एक फुल मोतिये दा मार, वो बंदा बेचारा बीवी की अगर ये ख्वाहिश हो कि सवेरे शौहर जो है वो मोतिये दा फुल मार के उठाएगा, उसको बेचारे को सुबह बिजली का बिल जमा कराना है, उसको ख्वाब में भी बिजली का बिल नजर आ रहा है, और बीवी इस बात पे नाराज है कि तुमने मुझे मोतिये का फूल नहीं मारा। जी तो अब बारी है झलक ब्यूटी क्रीम के सेकंड गिफ्ट हैम्पर की, यानी हमारी यस। इसके लिए हमें 2 पार्टिसिपेंट चाहिए। कौन कौन हिस्सा लेगा? आपको अंदाजा कि गेम कैसे खेलनी है? बस ठीक है, शाबाश, खुद ही शुरू हो जाओ। फिर कम से कम 7 बॉल जो है ना वो जरूर जानी चाहिए। 1 2 3 स्टार्ट। गुड, वेरी गुड। अभी तक 1 1 2 ओहो 3 यस वेल 2 4 वाओ तसल्ली से। हाँ टफ है, मुकाबला बड़ा सख्त है। जीत गई। काउंटिंग करो जरा। 6 10। वाओ, आज की विनर है सानिया, इनके लिए बहुत सारी तालियां। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपने ये मशहूर मुहावरा तो सुन ही रखा होगा कि चोरा नू पै गए मोर ते मोरा नू पै गए होर। आज आपको इस मुहावरे की अमली शक्ल दिखाते हैं अपने मिनी स्किट में। वे डुब के मर जा, तेनू हया दा काटा है, एडा तेरा जुस्सा है, मेरे घर चोरी कर दे, तेनू शर्म नहीं आई? जा परा मर, किधरे मजदूरी कर। 14 कैमरे लगे नहीं मेरे घर। 14 कैमरे भाजी? भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਿਗ ਬੌਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। बकवास ना कर, जिन्हां दे घर चोरी करना उत्थे डबल नुकसान करना है। एक चोरी करना है, दूजा कंध टपदे उन्हां दी कंध ढा दिंदा है। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਧਾ ਟੱਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, मैं तो चोरी उस घर च करना जिहदा गेट खुला होवे। वे सियाणे कहंदे ने जे गेट दा मुंह खुला होवे ना ते चोर नू शर्म करनी चाहिदी है। बाजी मिसाल ते मैं भी सुनी पर इंज नहीं सी बाजी। सच्ची सच्ची दस, किन्ने भेजिया तेनू मेरे घर? तेनू नजमा ने भेजिया है ना? बाजी कौन नजमा बाजी? मेरा घर तोड़ना चाहती है ते मेरे बंदे ते नजर रख के बैठी है, ओने ही तेनू भेजिया है। तू जा ओदा मेकअप चोरी करके ले आ ताकि मैं मेकअप ना लावा ते मैं अपने बंदे नू सोहनी ना लगा ते ओदा दाह लग जाए। ए नहीं लगन देना मैं। हाँ सच्ची दस दे मैनू। नहीं बाजी मैं प्रोफेशनल चोर नहीं बाजी, शौकिया चोर हां। वे शौकिया ते या फनकार हुंदा है या गुलूकार हुंदा है, शौकिया चोर केड़ा हुंदा है? बाजी मैनू छोटे हुंदे मेरे ताए ने कहा सी कि वड्डा होके सियासतदान बनेगा, मैनू उन्होंने समरी च वड़न नहीं दिता। मैं कहा चलो उन्हां वाले काम ही करे जाइए।
मैं तो सिर्फ अपने ताए दी जुबान रखी हूँ बाजी। दस फिर किदे किदे घर चोरी कीती है? मैं तेरे ते सारे पर्चे देने ने ते सारियां रिकवरियां करवा के अगलियां नूं देनियां ने। बाजी यकीन करो मैं चोर नहीं हैगा। अच्छा। मैं तो शौकीया चोर बनया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਚਦੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ। ਬਾਜੀ ਬਰਾਤ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾੜਾ ਵਿਖਾਓ ਲਾੜਾ ਵਿਖਾਓ, ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਵਾਹੋ ਚੋਰ ਵਾਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਜੀ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਦਰਜਨ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਕੇਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੌੜੀ, ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਬਾਜੀ। सच्ची सच्ची दस केदे केदे करू चोरी कीती है? ए कहानियां नहीं सुनानियां मैनू। बाजी मैं चोरी की शेख रशीद दे घर। मैं कहा वड्डा बंदा इथों वड्डा ही लभेगा, लहंगे जेवर मेकअप दा समान। मैं जाके इंज करके अलमारी खोली, ट्रंक फोड़ मारे, कारपेट चुक चुक मैं वेख्या, कुछ नहीं लभा बाजी। मैनू 4 घंटे बाद ते ज़हन च आया कि शेख रशीद दा ते ब्याह ही नहीं होया। फिर लब्बा की? टुटे सिगार चुक लिया बाजी। मैं ਉਹਦੇ ਚ ਮੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੂਰਬੀਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਬਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ ਬਾਜੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖਿੱਚਿਆ, ਅੱਬੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਮੈਂ ਪੀ ਗਿਆ। ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਪੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੀ ਗਿਆ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਪੀਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ। ਮਾਈਓ ਸਈਦ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਾਜ਼ ਖੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਦੂਜਾ ਖੋਲਿਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜਿਆ, ਉੱਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ? ਬਾਜੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਆ ਇਤਜਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਟਿੱਕਰ ਪੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਬੜਾ ਜਲੂਸ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕ ਕੇ ਪੁਲ पे पहुंच गए। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਟਕ ਗਏ ਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਅਟਕ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਰਾਈ ਜੁਨੇਦ ਸਲੀਮ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਲੱਭੇ? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਗੰਢਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡੇ। ਮੈਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੁਨੇਦ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਡੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਜੀ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲਫ ਗੰਢੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਭਲਿਆ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲੀ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਚ ਗੰਢੇ, ਉਤਲੇ ਖਾਨੇ ਚ ਗੰਢੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਚ ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਖੋਲਿਆ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਚ ਵੀ ਗੰਢੇ, ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਕੋਲਿਆਂ ਚ ਗੰਢੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਰਿਜ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਚ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਐਸੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਜੀ ਤਿਜੋਰੀ ਖੋਲੀ, ਐਡੇ ਬੰਡਲ ਗੰਢਿਆਂ ਦੇ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲੀ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ? ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਰਸ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਛਿੱਲੇ ਗੰਢੇ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤਿਜੋਰੀ ਖੋਲੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਜੁਨੇਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਟ ਲਈ ਗੰਢੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਫੜਨਾ। ਇੱਕ ਗੰਢਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤਾ ਬਾਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੰਢਾ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਡੇ? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਛਾਪਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਬਾਜੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। नाज़रीन ये था आज का देश को चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि वतन अजीज़ में अगर एक घर में 7 अफराद हैं
तो उनके कुल मिला के कमो बेश 11-12 यूट्यूब चैनल्स हैं। अगर अब भी वतन तरक्की ना करे तो फिर तरक्की की अपनी मर्जी। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।